Hello students, let's start chapter from the diary of Annie Frank from first flight. Okay. This lesson is taken from a novel of The Diary of a Young Girl. This is an excerpt from The Diary of a Young Girl, which is a novel written by Annie Frank. Annie Frank was at the age of 13 years, she started writing diary. And this diary was published after her death, and it was famous as the Diary of a Young Girl in Holocaust period. ये जो Diary of a Young Girl है, एक novel है. Before 2 years you can read in 10th class. ये 10th class में syllabus में थी. Now it was deleted. But this chapter is an excerpt from the डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. ये एक एक्सर्प्ट है, पार्ट है आपका जो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से दिया गया है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट समथिंग, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज एनी फ्रैंक, who was born at 12 June 1929. The main character of this chapter is Annie Frank, who was born on which date? 12 June 1929. Yes. 1929 को ये born हुई थी. This is the story of the time of World War II. जो ये story है ये कब लिखी गई थी? ये novel लिखी गई थी Second World War के time पर. Yes. The 12-year-old Jewish girl wrote the diary of Annie Frank, the diary of young girl. ये एक Jewish German girl थी. Jewish जो एनी फ्रैंक है ये क्या है? एक Jewish गर्ल. ये Jewish गर्ल है. While in hiding with her family. मैम Jewish का मतलब क्या? मैम Jewish का मीनिंग क्या होता है? Like you are Indian, as it is a nationality. ये nationality है Jewish. ठीक है. जर्मन में रहने वाले लोगों को Jewish कहा जाता था. ठीक है. It's a nationality. Okay. While in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. ये स्टोरी जो लिखी गई है, ये नोवेल जो लिखी गई है, ये हाइडिंग प्लेस पर लिखी गई है. हाइडिंग प्लेस. इट मीन्स when Nazis attacked on Germans and captured the whole German, then most of the Jewish people hide themselves at safe place. जो Jewish person थे उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया था safe place पर. तो ये हाइडिंग प्लेस पर लिखी गई है जिसे किस नाम से जाना जाता है? सीक्रेट एनेक्स. इट वाज नॉट गिवन इन योर लेसन. सीक्रेट एनेक्स. जहां पर ये हाइड होकर रहे थे उस प्लेस को क्या कहा जाता है? सीक्रेट एनेक्स. ठीक है. नाजिस ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकंड. जब नाजिस ने वर्ल्ड वार सेकंड में ऑक्यूपाई कर लिया था पूरा नीदरलैंड. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेशन कैंप. आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप. कॉन्सेंट्रेशन कैंप. In concentration camp, Jewish people were punished. They were kept in a chamber, and the poisonous gas released on them. जो poisonous gas छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी. तो concentration camp से बचने के लिए they took shelter at hiding place. उन्होंने hiding place पर shelter लिया था जिसका नाम था secret annex. और वहां की मिजरेबल लाइफ जो थी उसी के बारे में उसने एनी फ्रैंक ने इस डायरी में लिखा था. यस. मैम आप होल चैप्टर नहीं रीड करा रहे? नहीं, अभी मैं समरी ही बता रही हूँ बेटा. यस. ओके. जो एनी फ्रैंक के फादर का नेम था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओटो फ्रैंक. यस, टेल यू अबाउट द फैमिली ऑफ एनी फ्रैंक. Yes,
her father name is Otto Frank. Her mother name is Edith Frank. And her sister name is, what is the name of sister? Margot. She has a lovely family. Still, she feels very lonely. उसके पास एक lovely family है, but वो फिर भी कैसा feel करती है? Lonely. That's why she started writing in her diary, which was given on her 13th birthday by his father. जो एनी फ्रैंक है उसने स्टार्ट करा था डायरी को लिखना, जो उसके कौन से बर्थडे पर दी गई थी उसको? उसके 13th बर्थडे पर, 13th birthday, which was given by her father. She really loved her father. अपने फादर से वो बहुत प्यार करती थी. She thought that her father is the best father of the world. उसे लगता था जो उसके फादर हैं वो बेस्ट फादर हैं वर्ल्ड के. Okay. Her mother name is Edith Frank, father name is Otto Frank, sister name is Margaret, and she has a diary which was given by her father on her 13th birthday, and she named her diary Kitty. उसने अपनी डायरी को नाम दिया था Kitty, and she shared every feeling and emotion with her diary. वो अपनी डायरी के साथ अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, सभी चीजों को वो शेयर करती थी. Yes, diary writing, a strange experience. Annie Frank thinks that writing a diary is a strange experience for her. She has never written anything like this before. उसे लगता था एनी फ्रैंक को it was really a very strange experience, बहुत ही unique experience लगता था उसे. She has never written, इससे पहले उसने कुछ नहीं लिखा था डायरी से पहले. She feels that no one else except her will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. She feels that no one will take interest in her feeling. मतलब उसे लगता था कि कोई भी उसकी फीलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेगा. एक 13-year-old की म्यूजिक से कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, एक्सेप्ट हर डायरी, उसकी डायरी को छोड़कर. She wants to get all kinds of things off her chest, और वो अपनी जो उसकी ड्रॉअर थी उसमें वो अपने हर चीज का कलेक्शन रखना चाहती थी. इसमें एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पेपर हैज मोर पेशेंस. पेपर, ये क्वेश्चन आपका आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, पेपर हैज मोर पेशेंस. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. जो पेपर होता है उसमें ज्यादा पेशेंस होता है पीपल के कंपैरिजन. इसको जस्टिफाई करना है आपको. एंड ही फील्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज पेपर डू नॉट शेयर एनीथिंग, डजंट शेयर एनीथिंग टू एनीवन. वो किसी से कोई चीज शेयर नहीं करता है. आप जो भी चीज पेपर पर लिखते हैं, इट विल कीप itself, वो अपने पास ही रखेगा. इट विल नॉट शेयर टू एनीवन, वो किसी से शेयर नहीं करेगा. Annie feels that paper has more patience than people. There was a time when she was a little depressed and sat at home. कभी टाइम हुआ करता था वो बहुत डिप्रेस थी और कभी घर पे ही रहा करती थी. She doesn't want anyone else except her to read her step back notebook unless she finds a real friend. She started writing diary because she has no close friends. उसने क्यों लिखना शुरू किया था? Because she has no close friend. उसकी कोई close friend नहीं थी. In her free time she used to read her step back notebook. वो किसको पढ़ा करती थी? अपने step back notebook को पढ़ा करती थी. She doesn't have a friend. She thought that if she share anything to her friend, then they will tell to others. क्या होगा? उसे क्या लगता था कि अगर वो अपनी फ्रेंड से कुछ शेयर करेगी तो वो किन्हें बता देंगी? वो दूसरे लोगों को बता देंगी. So that she didn't want to share anything to her friend, and she loved to write diary.
उसको क्या लिखना पसंद था? डायरी. That's why she thought that paper has more patience than people. She can write anything on paper, but it will not क्या नहीं करेगा, वो कभी भी उसको अपोज नहीं करेगा जो पेपर है. And paper will not tell anything to anyone. वो किसी को कोई चीज नहीं बताएगा. That's why she says that paper has more patience than people. Okay. Her diary, her friend Kitty. Annie writes that outwardly there are about 30 people whom she can call friends. वो फील करती है, देखिए ये जो एज होती है 13 इयर्स, उसमें जो भी एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की जो फीलिंग है उसने उसको शेयर किया है इस डायरी में. जैसे वो कहती है उसके पास शी हैज 30 फ्रेंड्स, उसके पास 30 फ्रेंड्स हैं whom she can call friends, जिसको वो फ्रेंड कॉल कर सकती है. She has a family, loving aunts and a good home. उसके पास एक loving aunt, good home, सभी चीजें. She has everything. She has loving parents and 16-year-old sister. Loving parents mean 16 years old. It means Margaret is 3 years older than Annie Frank. जो Margaret थी वो 3 years older थी Annie Frank से. उसकी एक sister भी है, but still she feels alone. वो कैसा फील करती है? Alone फील करती है. She can only talk about ordinary things with them. उसे लगता है कि वो सिर्फ अपनी मतलब जो उसकी इंटीमेट थिंग्स है वो इनसे शेयर नहीं कर सकती. शी थिंक्स दैट शी कैन शेयर ओनली ऑर्डिनरी थिंग्स. वो अपनी ऑर्डिनरी थिंग्स को ही उनके साथ शेयर कर सकती है. जो उसकी इंटीमेट थिंग्स हैं, इंटीमेट उसकी बातें हैं, वो उन्हें शेयर नहीं कर सकती. दे आर नॉट कम टू क्लोजर. दिस इज द प्रॉब्लम. ये उसकी प्रॉब्लम थी. उसे लगता था शी कांट शेयर इंटीमेट थिंग्स टू ऑल एंड शी कैन नॉट कन्फाइड इन ईच अदर. और वो उनके सामने क्या नहीं कर सकती? ट्रस्ट नहीं कर सकती उनके ऊपर. मे बी इट इज हर ओन फॉल्ट. उसे लगता था कि शायद उसमें ये उसी की फॉल्ट है अगर वो ऐसा फील नहीं कर पा रही है. दिस इज वाई शी हैज स्टार्टेड द डायरी. दैट्स वाई शी हैज स्टार्टेड द राइटिंग डायरी. इसलिए उसने डायरी को लिखना स्टार्ट किया. Yes, she wants a diary to be her friend. She calls her diary as Kitty. वो अपनी डायरी को क्या कॉल करती थी? Kitty. It means the name of her diary is Kitty. Yes. Kitty. Yes, she calls her father the most adorable father. मैंने बताया था आपको कैसे उसे लगता था her father is the best father of the world. उसे लगता था उसके फादर बेस्ट फादर हैं. बहुत एडोरेबल फादर हैं. He married at 36. उसके फादर ने कितनी एज पर मैरी किया था? हर फादर मैरिड एट 36 years. हर फादर मैरिड एट द एज ऑफ 36 years. 36. And at that time her mother was 25 years old. Okay, her father married at the age of 36 years. Okay. Her sister Margot was born in 1926. Annie Frank was born in 1929 and her sister was born in 1926. I told you that she was 3 years older than Annie Frank. Okay. They immigrated to Holland in 1933. वो इमाइग्रेट हुए थे. कहाँ से इमाइग्रेट हुए थे? हॉलैंड से एम्स्टर्डम में इमाइग्रेट हुए थे. She got her education in 1942. उसने अपनी जो एजुकेशन थी वो 1942 तक कंटिन्यू की थी. एंड इन 1942 हर ग्रैंड मदर डाइड. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो 1942 में डाइड हो गई. एंड स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी ऑन 20th June 1942. She started writing diary in 20th June 1942. ये जो 1942 के पीरियड था उन्हें कहाँ पर स्पेंड करना पड़ा था? सीक्रेट एनेक्स. मैंने बताया था ना सीक्रेट एनेक्स. ये 2 साल तक वहां पर हाइड करके रहे थे, छुप कर रहे थे.
और वहां पर मतलब एक दो ही पर्सन को पता था कि ये रहते थे, वैसे ये है नहीं, दिया नहीं हुआ आपका चैप्टर में, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको इसका डिस्क्रिप्शन। तो वहां पर ये 2 साल तक रहे थे और इनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी, मतलब लास्ट में आकर इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई थी। बट दे वर कैप्चर्ड ऑन 6 जुलाई 1942 को ये वहां गए थे हाइडिंग प्लेस पर, और 2 साल बाद ये वहां से कैप्चर कर लिए गए थे और इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दे दिया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द एनी फ्रैंक द डायरी वाज पब्लिश। उसकी डेथ के बाद ये जो डायरी थी पब्लिश की गई थी, ठीक है। और हु वाज पब्लिश्ड, जो उसके फादर थे ओटो फ्रैंक, उन्होंने इसे पब्लिश करवाया था, ठीक है। यस, अब थोड़ा सा इसके हम जो इसका इस लेसन में दिया हुआ है इसका क्लास टाइम, जो क्लास में ये किस तरीके से बिहेव करती थी, ये किस तरीके की ये पर्सन थी। ओके, यस, क्लास शेकिंग विद फियर। जो स्टार्टिंग आपकी दी हुई लेसन में ये दिया हुआ है कि जो पूरी उसकी होल क्लास वाज शेकिंग विद फियर, वो फियर से शेक हो रही है। द टीचर्स विल डिसाइड इन द नेक्स्ट मीटिंग हु विल मूव अप एंड हु विल बी केप्ट बैक। और शेकिंग का क्या रीजन था, क्योंकि जो टीचर्स थे वो डिसाइड करने वाले थे। इट मीन्स इट इज द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। वो कौन सा डे था, रिजल्ट के अनाउंसमेंट का। उस दिन बच्चों को डर होता है ना कि हु विल कैप्ट इन सेम क्लास एंड हु विल मूव अहेड, कि कौन आगे जाएगा और कौन ही वापस उस क्लास में रहेगा। दैट्स व्हाई द होल क्लास वाज इन फियर। जो पूरी क्लास थी वो किसमें थी, फियर में थी। She realizes that at least there are about a quarter of students who are totally worthless. उसे लगता था कि जो क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इट मीन्स 1/4 स्टूडेंट्स आर वर्थलेस, वो वर्थलेस हैं। दे शुड बी कैप्ट बैक, उन्हें प्रीवियस क्लास में ही रखा जाएगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अबाउट द डिसीजन ऑफ द टीचर्स। लेकिन ये तो टीचर्स के डिसीजन को तो आप नहीं पता लगा सकते ना कि वो किसको आगे भेजेंगे। जस्ट यू नो दैट नाउ दिस टाइम द रिजल्ट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जो रिजल्ट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप अपनी आंसर कॉपीज चेक कर सकती हैं। लेकिन ये उस टाइम पर ये जो स्टोरी है 1942, उस टाइम पर थोड़ा सा टीचर्स भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कराते थे। यस, शी इज नॉट वरी श्योर अबाउट मैथ। वो वरीड नहीं थी, वो जानती थी वो एक एवरेज चाइल्ड थी। वो एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी नहीं थी जो एनी फ्रैंक थी, और बहुत ही मतलब बिलो एवरेज भी नहीं थी। वो एक एवरेज चाइल्ड थी पढ़ने में, वो जानती थी, वो वरीड नहीं थी। उसके मैथ टीचर, या इसका जो इंसिडेंट है मैथ टीचर, हर मैथ टीचर मिस्टर कैसी, उसके मैथ टीचर कौन थे, मिस्टर कैसी। एनी को पसंद नहीं करते थे। थोड़ा सा वो मैथ्स में बहुत अच्छी भी नहीं थी, दैट्स व्हाई ही डिडंट लाइक। बहुत ही फॉइगी टाइप के पर्सन थे वो। फॉइगी मीन्स ओल्ड फैशन टाइप पर्सन थे वो। फॉइगी, ओल्ड फैशन टाइप, ओल्ड फैशन पर्सन। ही वॉज ए फॉगी टाइप पर्सन। यस, he doesn't like her because she talks too much. वो उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें, मैंने बताया she is really very talkative, वो बहुत talkative थी क्लास में। Yes, the math teacher used to call him a chatterbox. वो उसे क्या बुलाते थे, मतलब chatterbox बुलाते थे। Once her math teacher give her homework to write an essay on chatterbox. Chatterbox means क्या होता है chatterbox? जो बहुत ही ज्यादा बातें करता है, वो जो टॉकेटिव होते हैं ना उनके लिए यूज किया जाता है chatterbox, ठीक है। जो उसके मैथ टीचर थे, द मैथ टीचर गिव्स हर सम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एन एसे ऑन ए chatterbox. उसके जो मैथ टीचर थे उन्होंने उसे ऐसे लिखने के लिए दिया था, किस पर, chatterbox, सॉरी।
because she is very talkative in the class. She writes 3 pages. Obviously she writes essay on Chatterbox और उसने 3 pages में वो essay लिखा. And she argues in the essay that talking is a student trait. उसने क्या उस पर कमेंट किया कि जो बातें करना है ना, इट्स ए स्टूडेंट ट्रेट. ये क्या है एक स्टूडेंट का? हेलो स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, students. Yes, student trait. It means it's a student quality. ये quality उसने बताया जो उसकी talkative, जो उसका talkative. Yes, so students, wait 5 minutes, okay? Okay. Yes, the math teacher gave her homework to write an essay on Chatterbox. Chatterbox पर उसको essay लिखने के लिए दिया था. She writes 3 pages. उसने 3 pages लिखे and she argues that it's a student trait. उसने क्या argue किया? वो क्या था? Student trait था. It means it's student quality. She promises to keep it under control. Besides it, she promised her teacher. उसने अपने promise किया teacher को कि वो उसको control करेगी. She feels that she will never be able to cure herself to the habit. उससे लगा कि वो इस अपनी habit को she can't remove this habit. वो उसे remove नहीं कर सकती. Her mother also talked as much as she does. उसने ऐसे में बताया कि जो उसकी मदर है, she always used to talk as much. वो भी इतना ही बात करना मतलब बात करती हैं. That's why she said that it is an inherited trait. उसने क्या कहा? ये क्या था? Inherited trait. Inherited means जो आपका hereditary. उसने इस अपनी क्वालिटी को क्या बताया? Inherited. Inherited means जो hereditary होता है. मतलब कुछ हैबिट्स ऐसी होती है ना जो आप अपने पेरेंट्स से आपको मिलती हैं. She said that the talkative nature she get from her mother. उसे कहाँ से मिला? मदर से मिला है. उसकी मदर से. Yes. Mr. Kessing has a good laugh at her arguments in the essay. वो बहुत हंसी उनकी इस बात पर. बहुत ही एक मुझे भी लगता है कि अगर कोई अपने इस नेचर के लिए hereditary, because you can control your talkative nature. ये आपके ऊपर है कि आप अपने नेचर को कंट्रोल कर पाते हैं. She blamed her mother. Next time her math teacher assigns her a second essay, and incorrigible Chatterbox. Finally, as punishment for talking in the class, he gives her another essay on quack, quack, quack. Next time, first time उन्होंने किस पर essay दिया उसको? Chatterbox पे. Next time किस पर essay दिया? Quack. Whose sound word is quack? Duck. It's a duck. Duck. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Yes. The class gives a roar of laughter. At that time, the whole class laughed at her. जो पूरी क्लास थी वो उसके पर हंसी. Her friend Sani is good at poetry. उसके एक फ्रेंड है Sani. She had her. Her friend Sani helped her. Yes. Is good at poetry. She offers to help her. उन्होंने Sani ने उसको ऑफर किया अपनी हेल्प के लिए. Annie wants to turn the table on Mr. Casey. She finishes the poem about a mother duck and a father swan with 3 babies. जो ये ऐसे उसने लिखने के लिए दिया था उसके सर ने उसने अपना जो ऐसे था वो किसके पोएम से कंप्लीट किया था? Father duck and the swan. Okay. Yes, students. Yes, उसे Chatterbox पर. And she writes
शी राइट्स ऐसे ऑन क्वैक 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 पर ऐसे दिया था एंड शी राइट्स ऐसे ब्यूटीफुली, और उसने उसको एक पोइट्री के रूप में फॉर्म में लिखा था, और पोइट्री वो उसने किसके ऊपर लिखी थी, वो फादर डक और मदर डक, फादर डक, मदर डक एंड देयर 3 डकलिंग्स, डकलिंग्स के ऊपर वो लिखा था, मदर डक एंड 3 डकलिंग्स एंड दे 3 डकलिंग्स। मैम मदर डक बट फादर स्वान। Oh, sorry, father swan. Yes. Yes, father swan, mother duck, and their 3 ducklings. Okay, the class gives, they are beaten to death by the father because they quack too much. It means उसने अपनी पोइट्री में मैसेज दिया कि उसके फादर जो थे, डकलिंग्स के जो फादर थे, उन्होंने उसे तब तक बिटन किया तब जब तक वो टिल डेथ तक। क्यों? बिकॉज दे कंटिन्यू डू क्वैक क्वैक क्वैक। आपको लगता है कि जो डकलिंग्स है वो क्या करेंगे? इट मीन्स वो शी वांट्स टू गिव मैसेज दैट a duckling type little innocent creature, it's the natural for them to do quack quack quack। उनके लिए क्या है, ये चीज नेचुरल है कि वो क्या करेंगे, वो quack 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 ही करेंगे। तो she wants to give a message that it is her habit, वो उसको नेचुरल है कि वो क्या करेगी, वो उसका जो टॉकेटिव नेचर है वो क्या है, वो नेचुरल है। तो वो ये मैसेज देना चाहती थी बाय हर पोएट्री। Mr. Kessing understands the poem and its message। जो मिस्टर केसिंग थे उसके मैथ टीचर, वो उसके मैसेज को समझ गए उस पोएम के थ्रू। Since then she has been allowed to talk, और उन्होंने उसे अलाउ किया किसके लिए, बातों के लिए। She has not been assigned with any extra homework, और उसे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ठीक है, ये स्टोरी है आपकी इस चैप्टर की। मैम इंजेन्युटी का क्या मीनिंग होता है? व्हाट्स द वर्ड लाइन बेटा?